एवरीवन। तो हेलो एवरीवन, दिस साइड से चलिए। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि चलो आज हम शुरू करते हैं। जैसे कि द हिंदू का ये एक बहुत बड़ा एडिटोरियल है। जैसे कि राम टेम्पल का जैसे कि इनाग्रेशन कल हुआ है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे एंड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा, जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स होगा, हम उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अगर आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगे तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरा नाम है सुमन चलचला। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द एडिटोरियल। ओके, सो देखो, जैसे कि द राम टेम्पल मस्ट हेल्प इन healing wounds and creating harmony. The opening of the Ram temple in Ayodhya is a sharp turn in the course of the nation. The central role of the state in the rituals associated with the inauguration of the temple is being celebrated by the proponents. देखो ये एक वर्ड है प्रोपोनेंट्स। ओके, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये एक बहुत बड़े वर्ड है प्रोपोनेंट्स and of the temple, while its opponents fear it is the beginning of a dangerous side. Two divergent visions of Indian nationhood inspire the two sides. The inauguration of the temple marks a definitive milestone, if not a comprehensive victory, for the vision of the BJP and Prime Minister Narendra Modi. Mr. Modi said it was beginning of a new era in the history of the country, an era that will last for centuries. He called humility alongside the celebration of victory, and invoked the universality of the spirit of Ram that encompasses all of humanity. Uh, Portraying the temple as a link between India's rich cultural inheritance and ambitions for the future across the various regions and communities of the country. Mr. Modi exhorted fellow citizens to think big and work purposefully for progress. Ram Rajya has made multiple imaginings. The temple in Ayodhya must inspire and promote the conception of a polity determined not by an obsession with the past, but by an appreciation of the difficulties of the present and the challenges and opportunities of the future. The Prime Minister also noted that the fact that the temple was facilitated by a judicial decision and the Supreme Court verdict that handed over the disputed land in Ayodhya to the Hindu petitioners had also unambiguously noted that the demolition of Babri Masjid on December 6, 1992 by Kar and Sevakas was a serious violation of law. Devotees of the temple in their moment of celebration should not be unmindful of the past. Triumphalism and grievance must give way to reconciliation and harmony, and fear must yield to hope. The temptation to use the same template of settling contests and grievance can trigger unpredictable social forces and risk national unity. Mr. Modi grievance can trigger unpredictable social forces and risk national unity. Mr. Modi himself noted this fact while appreciating the relative ease with which the temple was built after the Supreme Court verdict in 2019. In the making of present day politics, the past is often used as a malleable material. It can surely be deployed for the purpose of forging unity and creating harmony instead of for accentuating difference. The wisdom statecraft in
मेकिंग द राइट चॉइस। देखो पहला जो वर्ड होता है वो होता है इनागुरेशन। इनागुरेशन का मतलब क्या होता है? उद्घाटन। देन सेकंड वर्ड होता है, सेकंड वर्ड प्रोपोनेंट यानी समर्थक। थर्ड दैट इज कॉल्ड एज डिफाइनेटिव यानी अंतिम। फोर्थ इज ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। देन फिफ्थ इज इनवोक यानी उकसाना। इनवोक मतलब क्या होता है? उकसाना। देन सिक्स्थ इज एनकॉम्पेंसस यानी अंतर्गत। एनकॉम्पेंस मतलब अंतर्गत। देन सेवंथ इज पोर्ट्रे यानी चित्रित। पोर्ट्रे मतलब क्या है? चित्रित। देन एट्थ इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? विरासत। आप सभी लोग सुना होंगे, जैसे कि ना राजा महाराजा की विरासत होता है। ओके, बहुत बड़े बड़े विरासत जो होते हैं उसके हम इनहेरिटेंस कहते हैं इंग्लिश में। ओके, द नेक्स्ट इज कंसेप्शन यानी धारणा। कंसेप्शन यानी कोई किस चीज का हम धारणा दे रहे हो उसको हम धारणा कहते हैं। ओके, देन टेंथ इज ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मीन्स जुनून। अगर किसी काम को करने में जुनून होना चाहिए उसे कहते हैं हम जुनून। देन 11th इज ग्रीवेंस। ग्रीवेंस मतलब किसी का, और आप कोई गलत काम करो ना तो उसके ऊपर आप लोगों को शिकायत किया जाएगा, ऐसे आप बोलते हैं ना कभी कभार, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीवेंस। ग्रीवेंस मतलब शिकायत करना। देन ट्वेल्थ इज क्या है ना? असेंचर्ट यानी मतलब बल देना। असेंचर्ट मतलब किसी को हम बल दे रहे हैं। ओके, किसी को अगर कोई वीक हो रहा है तो उसको हम थोड़ा इवोक कर, मतलब इवोकिंग कर रहे हैं उसको, उकसा मतलब उसको हम क्या थोड़ा थोड़ा बल दे रहे हैं। ओके, देन 13th इज मालेबल। मालेबल मीन्स आप किसी की धातु के नाम भी सुने हैं कि मालेबल धातु होता है, या दिस इज आर नॉट मालेबल। मालेबल मीन्स क्या होता है? नरम। ओके, क्या होता है? नरम होता है। देन नेक्स्ट इज अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसके ऊपर हम उसका हिंदी मीनिंग भी जान लेते। देखो पहला जो पैराग्राफ है, द ओपनिंग ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या इज ए शार्प टर्न इन द कोर्स of the nation, the central role of the state in the rituals associated with the inauguration of the temple is being celebrated by the proponents of the temple, while its opponents fear it is the beginning of a dangerous slide। यानी क्या हुआ? देखो, अयोध्या में राम मंदिर का खुलना देश के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। यानी मंदिर से उद्घाटन से जुड़े अनुष्ठानों में राज्यों में या राज्यों की केंद्रीय भूमिका का मंदिर में एक समर्थक द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। यानी जो अयोध्या में जो राम मंदिर है वहां पे जो खुलने के लिए देश का एक बहुत बड़ा बदलाव था। यानी मंदिर का उद्घाटन के समय जो उस पर जो अनुष्ठान जुड़े, जितने भी राज्यों के जितने बहुत बड़े बड़े जो भी मंत्री वगैरह जो भी यहाँ पे जुड़े हैं ना, तो बहुत बड़ा उनका भूमिका भी था। ओके, देन मंदिर में जो समर्थकों के द्वारा ये सब जश्न मनाया गया। जितने भी मंदिर के जितने बड़े बड़े जो समर्थक होते हैं, जो सपोर्टर्स होते हैं, उनका तो ये सभी जश्न मनाया जा रहा है। जबकि इसके विरोधियों को डर है कि यह एक खतरे की शुरुआत है। मतलब इनको जो विरोधी, जो भी राम मंदिर के जो विरोधी होते हैं, ओके, इनको लग रहा है कि ये खतरे का शुरुआत है, लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई, खतरे की शुरुआत नहीं है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा सही बात है। ओके, देन देखो, टू डाइवर्ट एंड विजन ऑफ इंडियन नेशनहुड इंस्पायर द टू साइड्स, देन द इनॉग्रेशन ऑफ द टेम्पल मार्क्स ए definitive milestones if not a comprehensive victory for the vision of the BJP and Prime Minister नरेंद्र मोदी। ओके, देन देखो, इंडियन नेशनहुड के दो भिन्न दृष्टिकोण दोनों पक्षों के प्रेरित करते हैं। ओके, मंदिर के उद्घाटन में बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से एक व्यापक जीत तो नहीं पर एक निश्चित मील का पत्थर है। यानी इस टॉपिक में ये बोल रहे हैं कि इंडियन नेशनहुड में, मतलब जैसे कि हमारा जो ब्रदरहुड है, जैसे कि इंडियन में एक नेशनहुड है। ओके, एक भिन्न दृष्टिकोण हो जाता है कि क्या दोनों पक्षों को प्रेरित करता है, जो भी इनको सपोर्ट करता है या जो भी इनको अपोज करता है, यानी जो भी इनका असमर्थन करता है। सो मंदिर का उद्घाटन बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को दृष्टिकोण में व्यापक एक जीत तो नहीं पर एक निश्चित माइलस्टोन है। निश्चित एक माइलस्टोन मतलब क्या, एक मील का पत्थर है। ओके, देन नेक्स्ट इज Mr. Modi said it was the beginning of a new era in the history of the century, and era that will last for centuries. He called for humility alongside the celebration of victory and invoked the
universality on the spirit of Ram that encompasses all the humanity। यानी मोदी ने ये कहा है कि क्या यह देश के इतिहास में एक नए युग का शुरुआत है। ओके, जैसे कि राम मंदिर जब कल जो इनाग्रेशन हुआ उसके लिए जो हमारा जो इंडिया के भारत देश ये एक नई शुरुआत है, यानी एक ऐसा युग जो सदियों तक चलेगा। मतलब ये एक ऐसा युग है, जैसे कि कलयुग में राम का मंदिर प्रतिष्ठा मानते हैं, लेकिन ये एक ऐसा युग हो गया जो सदियों तक चलेगा। देखो, तो उन्होंने जीत के जश्न के साथ साथ विनम्रता और राम की भावना की सार्वभौमिकता का आह्वान किया, जो पूरी मानवता को सम्मानित करती है। मतलब मानवता के ये एकम्पस यानी सम्मानित यानी ह्यूमैनिटी के एक अधिकार होता है। ओके, द नेक्स्ट इज portraying the temple as a link between India's rich culture, inheritance, and ambitions for the future across the various regions and communities of the country. Mr. Modi exhorted fellow citizens to think big and work purposefully or for progress। देखो, मंदिर को इंडिया की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और देश के विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों की भविष्य की महत्वाकांक्षा के बीच एक कड़ी के रूप में चित्रित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को सबसे बड़ा सोचने और प्रगति के लिए उद्देश्यपूर्ण ढंग से काम करने का एक आह्वान किया। मतलब जैसे कि अभी जो राम मंदिर का जिसका जो उद्घाटन हुआ, इसके लिए मंदिर को इंडिया के समृद्धि के लिए, यानी इंडिया को डेवलप करने के लिए, यानी इंडिया को विकसित करने के लिए, भारतवर्ष को विकसित करने के लिए सांस्कृतिक विरासत और देश के विभिन्न क्षेत्रों में और समुदायों की भविष्य भी जो महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा मतलब जो उसका जो पर्पसफुली होती है, उनके बीच एक कड़ी रूप में चित्रित किया गया है। मतलब जैसे कि जो भी हमारे जो इंडियंस होते हैं इनके ऊपर एक कड़ी रूप में चित्रित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से एक बड़ा सोचने और प्रगति के लिए उनको बता रहे हैं। मतलब आप भी जो सोचो बड़ा सोचो। ओके, और प्रगति के लिए किसी भी क्षेत्र आप आगे जा सकते, ऐसे ये कह रहे हैं। ओके, या ढंग से काम करने की उन्होंने एक आह्वान किया। देन राम राज्य हैज मेड मल्टीपल इमेजिंग्स द टेम्पल इन अयोध्या must inspire and promote the conception of a polity determined not by an obsession with the past but by an appreciation of the difficulties of the present and the challenges and opportunities of the future। यानी राम राज्य की जो अनेक कल्पना की गई है अयोध्या के मंदिर में। ओके, एक ऐसी राजनीति की अवधारणा को प्रेरित और बढ़ावा देने चाहिए जो अतीत के प्रति जुनून से नहीं, बल्कि अतीत प्रति जुनून नहीं, ओके, बल्कि वर्तमान की कठिनाइयों और भविष्य की चुनौतियों और अवसरों से निर्धारित हो। मतलब जैसे कि मोदी अभी ये बोल रहे, जैसे कि राम राज्य अब जो प्रतिष्ठा हुआ, मतलब अब कब आप भी कल्पना कर सकते हो अयोध्या मंदिर में उनको एक ऐसी राजनीति की अवधारणा को ये प्रेरित और बढ़ावा देना चाहिए। ओके, जो अतीत प्रति जुनून नहीं था, मतलब जो पास्ट में क्या ना उनके पास उतना जुनून भी नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में क्या बहुत सारे कठिनाई और भविष्य को चुनौती अवसर से ये निर्धारित करता है, निर्धारित होता है। ओके, देन द प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो नोटेड द फैक्ट दैट द टेम्पल वाज फैसिलिटेटेड बाय ए जुडिशियल डिसीजन। यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कि इस तथ्य पर भी ध्यान दिलाया कि मंदिर के न्यायिक निर्णय द्वारा बनाया गया है। यानी जो भी मंदिर के जो जितने भी जो न्यायिक बड़े जो उनका जो पुजारी होते हैं उनको जो न्यायिक इनको द्वारा ये बनाया गया है। यानी द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दैट हैंडेड ओवर द डिस्प्यूटेड लैंड इन अयोध्या टू द हिंदू petitioners had also unambiguously noted that the demolition of Babri Masjid on December 6, 1992 by Karsevaks was a serious violation of law। यानी अयोध्या में ये विवादित भूमि को हिंदू याचिकाकर्ताओं को सौंपने वाले सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला में भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद का विध्वंस कानून को गंभीर उल्लंघन था। यानी जो 6 दिसंबर 1992 को एक कार सेवक द्वारा एक सीरियस वायलेशन लॉ के हुआ था।
कहाँ पे ना, बाबरी मस्जिद के कानून का एक गंभीर उल्लंघन था ये. ओके, देन डिवोटीज of the temple, their moment of celebration should not be unmindful of the past. Triumphalism and grievance must give way to reconciliation and harmony, and fear must yield to hope. यानी मंदिर के जो भक्तों को उत्सव के अपने क्षण में अतीत के प्रति उदासीन नहीं रहना चाहिए. यानी उदासीन मतलब इतना भी दुख आना नहीं रहना चाहिए, मतलब इतना नहीं, उतना भी विदाउट होप में नहीं रहना चाहिए. ओके, विजय और शिकायतों को रास्ते मोल मिलाप और सद्भाव रखना चाहिए. यानी और भय को आशा के रूप में जन्म देना. भय को मतलब क्या, जो हमारे जो भय होते हैं उस भय को आशा के रूप में जन्म देना चाहिए. Then the temptation to use the same temple to setting contests over place of worship must be abandoned immediately. यानी इस तरह के धार्मिक स्थानों के मुद्दे पर चुनाव यानी जीतने के टेम्पटेशन को तत्काल प्रभाव से छोड़ देना चाहिए. So seeking to settle historical grievances can trigger unpredictable social forces and risk national unity. यानी ऐतिहासिक शिकायतों को निपटाने की कोशिश यानी अप्रयासित सामाजिक ताकतों को बढ़ावा दे सकती है और राष्ट्रीय एकता को खतरे में भी डाल सकती है ये. ओके, देन मिस्टर मोदी himself noted this fact while appreciating the relative ease with which the temple was built after the Supreme Court verdict in 2019. So 2019 में सुप्रीम कोर्ट को फैसले के बाद जिस सहजता से मंदिर को निर्माण किया गया है उसकी सराहना करते हुए मोदी ने स्वयं इस फैक्ट पर ध्यान दिया. ओके, इन द मेकिंग ऑफ प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स, ओके, देन द पास्ट इज ऑफन यूज्ड एज malleable material. It can surely be deployed for the purpose and of forging unity and creating harmony instead of for accentuating differences. The wisdom of statecraft is in making the right choice. यानी वर्तमान राजनीति के निर्माण में अतीत को अक्सर निंदनीय सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है. सो इसे निश्चित रूप से मतभेदों को बढ़ाने के बजाय एकता स्थापित करने और सद्भाव पैदा करने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा सकता है. सो राजकाज बुद्धिमत्ता सही चुनाव करने में हो. देन देखो स्टेटक्राफ्ट यानी द स्किल ऑफ गवर्निंग कंट्री यानी शासनकाल. देन सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला. देन फैसिलिटेड यानी टू मेक समथिंग पॉसिबल टू और इरेजर यानी किसी बातचीत को संभव या स्वयं आसान बनाना चाहिए. ओके.